Once again, welcome, promising experience, and we have already discussed 6 points regarding the nuclear energy. Now, come to the point number 7. Okay, I told you that within the nucleus there are neutrons and protons, right? अब suppose करो you asked to manufacture न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनाने के लिए आपको कहा जाए और न्यूट्रॉन प्रोटॉन दे दिया जाए, तो आपसे पूछा जाए कि बने हुए न्यूक्लियस की मात्रा कितनी होगी। ऐसा लगता है कि न्यूट्रॉन की मात्रा प्लस प्रोटॉन की मात्रा वही न्यूक्लियस की मात्रा होगी। नहीं, इट्स रॉन्ग। The mass of the nucleus formed is always less than the mass of the nucleons. Nucleons मैंने इसलिए कहा कि nucleons, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को nucleons बोलते हैं। Remember, the mass of the nucleus formed is always less than the mass of the nucleons responsible to form the nucleus, right? Common sense, I am telling you. Say this is mass of the neutron. This is mass of the proton. This is before the formation of the nucleus. Nucleus बनने के पहले, before nucleus formation, nucleus बनने के पहले। अब nucleus बनने के बाद जो मात्रा है, सपोज करो कि वो हमारा Mn है। N स्टैंड फॉर द nucleus. वेरी क्लियर? तो याद रखिएगा, Mn is every time less than Mn plus P, right? Mass of the nucleus formed is every time less than that of the mass, sum of the masses of the nucleons responsible for the formation of the nucleus, right? It means there is a difference. तो ऐसा लगता है कि मात्रा का क्षय हो गया, there is a loss of mass, and this violates conservation of mass. ऐसा लगता है कि ये क्या है, मास कंजर्वेशन को वायलेट करता है। ऐसी बात नहीं है। According to Newton, mass and energy are the two different entities, but according to Albert Einstein, mass and energy are equivalent. So, very famous mass energy equivalence of Albert Einstein E is equal to delta m into c square. E is equal to delta m into c square. Now come. So, next point is ours. Say E is equal to delta m into c square. Of course, this is in joule. Joule में होगा ये. And c speed of light in vacuum, it is your 3 into 10 to the power 8 meter per second almost. निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होगा? 3 into 10 to the power 8 meter per second. Remember, right? And this delta m is the, this is what? Say Mn plus Mp and minus Mn. This is called mass defect. Difference जो mass का हुआ, this is called mass defect. समझ रहे हैं आप लोग? This is called mass defect. तो ये जो difference of mass होगा वो energy में convert हो जाता है. And mass energy are equivalent. That's why there is nothing like the violation of the conservation of mass, because loss of mass goes in the form of energy. According to this Albert Einstein famous formula, mass energy equivalence. This is your what? E is equal to delta m into c square. This is called mass energy equivalence. Mass energy equivalence, right? Now this so-called E is equal to delta m into c square j, E energy, delta m mass defect, c speed of light. This is
binding energy of the nucleus. This is binding energy of the nucleus, right? And the binding energy of the nucleus per nucleon is constant. Binding energy per nucleon is constant. Its value is about 8 million electron volt per nucleon, provided that the mass number should be in the range of A is equal to 32, A is equal to 170. Remember, a very important fact. Next, now say there is a chemical process. In the chemical process, energy, if there is a exothermic reaction, अगर हमारे पास क्या है ये जिसमें ऊर्जा निकलती है, in exothermic reaction, energy involved will be in the order of electron volt. Whereas if there be a nuclear process, then the energy will be involved in the order of million electron and volt, right? And say that's why if you now next come to the next slide. The Q value of a nuclear process is equal to Q of final kinetic energy minus initial kinetic energy, and due to conservation of mass energy, this is also a Q is equal to sum of initial masses minus sum of final masses multiplied by C square. It means E is equal to delta M into a C square. Now I come to the radioactivity, right? Radioactivity is जैसे हमारे पास जो भी हायर एटॉमिक मास के जो भी न्यूक्लियाई है हमारे से मोर देन 90, से द न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक मोर देन 90, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, राइट? दीज आर कॉल्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई. वेरी क्लियर. कारण क्या है कि मास नंबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनके न्यूक्लियस खुद स्वतः टूट जाते हैं. क्या हो जाता है? स्वतः टूट जाते हैं. तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी, एंड द एमिशन is called radioactive emission in the form of alpha decay, beta decay or the gamma decay. Remember? Very clear? And now say alpha decay. Alpha decay, alpha means say helium nucleus. Helium nucleus. Beta means it involves electrons or positron. And now the gamma decay, electromagnetic emission. ये जो गामा डिके होता है, अगर हाई एनर्जी स्टेट में न्यूक्लियस होता है एंड लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो क्या होगा? वो एनर्जी एमिट करता है. एंड द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द टू एनर्जी स्टेट्स फॉर द न्यूक्लियस, उसके बराबर एनर्जी एमिट होती है. दिस इज द गामा डिके. नेक्स्ट, नाउ you can know something more about the decay process.
say I'm writing here, say you take uranium 92 to 38 to 38, it decays into thorium 90 to 34 plus. This is the example of alpha decay. This nucleus is the alpha particle. तो याद रखिएगा, alpha particles are the positively charged particles. It is the helium nucleus, right? Now you can think for the, say, the beta decay. Now in beta decay, what happens? See here, say you take phosphorus 15, 32. Now it decays, say, this is your sulfur 16, 32 plus electron and plus a nu. Just I am repeating beta decay, example of beta decay, phosphorus with atomic number 15, atomic mass 32, it decays into sulfur, atomic number 16, atomic mass 32 plus electron plus nu, right? And the same way you can think for the so-called, I told you that the gamma decay, gamma के बारे में मैंने बताया कि जब न्यूक्लियस हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो इमिट होता है, दैट इज कॉल्ड अ गामा डीके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट? नाउ come to share an example of nuclear fission. In fact, nuclear reaction will be in two forms. One is your fission, another one is your fusion. पहला क्या है? फिजन है. फिजन में क्या होगा? हेवी न्यूक्लियस न्यूट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट से वो लाइटर न्यूक्लियस में टूट जाते हैं और एनर्जी निकलता है. फ्यूजन में क्या होगा? FUSION, यूनियन ऑफ द टू लाइटर न्यूक्लियाई. दो हल्के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो मिलके अपेक्षाकृत बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और एनर्जी निकलती है, राइट? जैसे हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल फ्यूजन की क्रिया होती है. उसी तरीके से हमारा अगर एटम की बात करेंगे तो वहाँ पर अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. यदि इफ़ यू सी द एनर्जी इन द स्टार और सन में एनर्जी की यदि बात करेंगे तो वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और वहाँ पे क्या होगा? 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस और उसे एनर्जी निकलती है. बाकी मैं बता दूँ, for nuclear fusion to bring about we need very large temperature. यदि फ्यूजन की क्रिया कराना चाहते हो, यदि दो लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करा के अपेक्षाकृत बड़ा न्यूक्लियस बनाना चाहते हो, काफ़ी परिमाण में एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी आपको. तो 10⁻7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी और ये 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ये फ्यूजन से ही क्रिएट हो सकता है. एंड दैट्स वाई टू ब्रिंग अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन यू हैव टू बी रेडी फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट? अब एग्जाम्पल हमारे पास है ये, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ ये यूरेनियम 235 है ये. चूँकि ये क्या होता है? स्लो न्यूट्रॉन से टूट जाता है. किससे टूट जाता है? स्लो का मतलब थर्मल. स्लो मीन थर्मल. स्लो न्यूट्रॉन से टूट जाता है ये आपका. तो ये आपका यूरेनियम 235 है. इस पर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट होगा एंड यू विल गेट SV with atomic number 51, charge number 133, and NV with atomic number 41 and charge number mass number 99, and along with you get 4 neutron. साथ साथ चूँकि ये जो जितने भी मिलते हैं हमारे, ये क्या होगा? काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए ये तब तक एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं जब तक कि वह स्टेबल
नहीं हो जाता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। Now remember a few things. Say in nuclear fission, if the fission is controlled, I told you nuclear reactor जिससे एनर्जी मिलती है हमें, and fission is uncontrolled एटम बम। यदि हम न्यूक्लियर रिएक्टर की यदि हम बात करते हैं, आई एम टॉकिंग टू न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंपोनेंट्स रहेंगे हमारे, कंट्रोल रॉड्स होंगे, याद कर लेंगे इसको, पूछता है ये। कंट्रोल रॉड्स होता है वो कैडमियम का होता है, CD कैडमियम याद रखेंगे। दूसरा क्या होता है मॉडरेटर का एक कंट्रोल रॉड्स का काम होता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, याद रखेंगे। कोई पूछेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलर का क्या काम होता है, तो आप कहेंगे टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। इनफैक्ट हर एक फ्यूजन में 3 न्यूट्रॉन निकलता है, और यदि तीनों न्यूट्रॉन को अगर अलाउ कर दें हम फ्रेश यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, तो क्या होगा, ये काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। और साथ साथ ये भी संभव है कि सारे के सारे न्यूट्रॉन्स ये कैपेबल नहीं भी हों कि वो क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया को करा सके फर्दर, या हो सकता है कि अगर न्यूट्रॉन्स बहुत फास्ट है तो फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन गो आउट ऑफ द बल्क ऑफ द सो कॉल द फ्यूल बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए ज़रूरत क्या पड़ेगा हमारा, पहला कंट्रोल रॉड्स मैंने बताया कि 4 में से अगर 3 न्यूट्रॉन निकला, 3 में 2 को शोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एक ही बचा, तो सस्टेन तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती रही और एनर्जी मिलती रही। सेकेंड मैंने क्या बताया, मॉडरेटर के रूप में जो इस्तेमाल होता है आपका H2O, वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और नेक्स्ट ग्रेफाइट, ये सब याद रखेंगे आप। जैसे हमारे पास भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अप्सरा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहाँ पे क्या होगा, मॉडरेटर जो है वाटर है आपका, बाकी शेष जगहों में हमारा ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे हेवी वाटर भी हम बोलते हैं, राइट। एंड तीसरा जो होता है हमारा है, तो मॉडरेटर का क्या काम हुआ, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, ये एब्जॉर्ब करेगा, ये स्लो डाउन किसको, न्यूट्रॉन को। एंड तीसरा होता है हमारा कूलेंट का काम होता है जो हाई एनर्जी जो पैदा हुआ उस एनर्जी को क्या होगा, वह बाहर करना, और वो एनर्जी फिर क्या होगा, उससे जो भी हमारा वाटर होगा वो गर्म होगा, और फिर वह जो वेपर बन के टरबाइन पर जाएगा, एंड टरबाइन विल मूव एंड यू विल गेट द एनर्जी, राइट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का जो है यही प्रिंसिपल है, राइट। नेक्स्ट कम टू फ्यूजन की हम बात करेंगे। तो हमारे पास जो फ्यूजन में व्हाट हैपेंस, सी for say in the sun, I am talking to the sun particularly, say 4 hydrogen nuclei fuse together to give helium nucleus this much energy is your E is equal to 26.7 MeV। ये क्या है, दिस इज द सो कॉल विद इन द सन। इस सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है कि जहाँ पर क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन के साइकिल के कारण या प्रोटॉन साइकिल के कारण 4 जो होता है हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंबाइन करके बना देता है हीलियम न्यूक्लियस।
उसके साथ along with all energetic particles you get 26.7 MeV of energy. कि we see there is a nuclear reaction, fission, बड़ा को छोटा बनना एंड फ्यूजन छोटा को अपेक्षाकृत बड़ा बनना। और ये मैंने बताया था कि इन द सन थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस होता है, फ्यूजन प्रोसेस होता है, वहाँ पे 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई combine together to form a helium nucleus. Along with all these particles, you get the energy 26.7 million electron volt. फिर अगर यदि हम एक यूरेनियम 235 न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन के साथ फ्यूजन कराते हैं FiSiON, तो एनर्जी जो मिलेगी 200 MeV मिलेगी। तो आपको ऐसा लगता होगा कि एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन प्रोसेस इज मोर देन डेट ऑफ द फ्यूजन प्रोसेस, राइट? ऐसा लगता है। ये एक के साथ हो सकता है, फॉर वन फ्यूजन और द फ्यूजन दिस इज़ ट्रू। लेकिन अगर हम एग्रीगेट ऑफ द फ्यूजन की बात करें, तो यू मस्ट बॉर्न इन योर माइंड दैट द एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर फ्यूजन इज मोर दैन द एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट? एंड दैट्स वाई फ्यूजन प्रोसेस within the sun, other stars is giving energy to us, right? और काफ़ी दिनों से मतलब ये एनर्जी हम लोग को मिल रही है सूर्य से, और जान के आश्चर्य होगा कि नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स तक भी एनर्जी हमें सूर्य से मिलती रहेगी बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, राइट? अब थोड़ा सा और भी हम चर्चा कर लें। ये समथिंग अबाउट दी मास है, ये एटॉमिक मास यूनिट है, और डिसइंटीग्रेशन और डीके कांस्टेंट है, और ये जस्ट एटॉमिक मास यूनिट। इसका डेफिनेशंस पहले फ्यूचर से हम लोग कर चुके हैं। फिर ये हाफ लाइफ पीरियड है, और हाफ लाइफ पीरियड ये मीन लाइफ के बारे में सी ऑन द बोर्ड। और ये हमारा जो मेजर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स है, बैक में होता हूँ। आपको मैं बता दूं कि रेडियो एक्टिविटीज़ जो है, शुड आई राइट हियर, यहाँ मैं लिखता हूँ रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो है मैं बता दूं आपसे, बैक्यूरेल है, और 1 बैक्यूरेल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड और 1 डीके पर सेकेंड। यूनिट ऑफ पूछा जाता है, पूछे जा सकते हैं। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैक्यूरेल, साइंटिस्ट का नाम है, और 1 बैक्यूरेल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड और 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, राइट? नेक्स्ट यूनिट हमारा क्यूरी है। आपने क्यूरी का, मैडम क्यूरी का नाम सुना हो ना, जो जिन्हें मैं बता दूं कि 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, एंड शी इज़ द ओनली फर्स्ट पर्सन जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ में प्राइज़ मिला, एक फिजिक्स के लिए एंड दूसरा केमिस्ट्री के लिए। उनके नाम पे भी यूनिट है, और ये 1 क्यूरी, ये भी क्या है, रेडियो एक्टिविटी की इकाई है, एंड 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू बैक्यूरेल। तो दीज आर द यूनिट्स, इसको याद रखेंगे आप। कुछ टर्म्स इसके अंदर आए हैं। हाफ लाइफ पीरियड, तो मैं बता दूं कि हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि वह समय जिसमें कि जो भी हमारा नंबर हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, उतने समय के बाद में आधा डिके कर जाता है। जैसे एग्जांपल्स मैं ले लूँ आपको कि n इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। क्या है हमारा फॉर्मूला? ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है, n इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इंटू टी, राइट? T is the instantaneous time, n0 is the initial number of nuclei, n after time t, and lambda decay constant. अब इसी में क्या होगा कि हमारे पास सपोज करते हैं कि इनिशियल नंबर हमारे पास
N0 है ये, और यदि कुछ समय बाद यह N0/2 हो जाता है, राइट. So the initial number of the nuclei, radioactive nuclei is N0. After some time it becomes half, N0/2. Then the time taken is called half-life period. And half-life period is very important because it is used in the carbon and dating, right? So we have seen that the nuclear energy is of much importance, and now several initiatives are being taken globally or even in our country through the different nuclear power plants to harness more nuclear energy. Indeed, now there may be the nuclear accidents भी होता है, and we must be very careful the safety measures if you on the larger scale switch over to the nuclear energy. That's all for the day. Thanks for giving me a patience listening.